Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to talk about the organic chemistry part, and we are going to look at the solutions to problems that were asked in December 2019 in NET exam, and this is the question paper that appeared in Assam and Meghalaya region. So if you like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. So without wasting any time, let's look at the problems. So the first problem that we are going to look at is this transformation. So basically this problem is based on Stevens rearrangement. So I have made a video on Stevens rearrangement. Basically जो भी हमारा इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस होंगी, सारी की सारी मैंने ऑलरेडी वो कंटेंट बनाया हुआ है, एंड यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू द डिस्क्रिप्शन. इस वीडियो के सारी वीडियोस के वो लिंक मिल जाएंगे. वहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाले जो कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखेंगे वो उन सारी वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किए गए हैं. ठीक है, so let's jump into it. So what is the first step? The first step is the methylation using methyl iodide, and they have carried out this transformation DCM. So if we have the starting material, we know the nitrogen has, this is a tertiary amine. So what it does, it attacks the methyl. So what do we end up getting is the formation of this quaternary ammonium salt. Now in the second step, what they are using is phenyl lithium as a base. Now if we look at, this is a nitrogen, it is protonated, so it means that it is deficient of electrons. So it is trying to abstract the electron density from this carbon and this carbon. So what we have is three potential acidic hydrogens, and this base, which is phenyl lithium, can abstract all three of them, right? So we are going to look at what is the product that we are going to observe जब हमारा HA abstract होता है, HB abstract होता है, HC होता है. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि what happens when there is an abstraction of HB proton. Okay, so once you abstract the HB proton, so what you are generating is this nitrogen halide. Okay, so what happens, this negative charge, it attacks this ring. So जैसे ही वो आपका ये 1-2 स्टीवन रीअरेंजमेंट है, दिस इज नथिंग बट 1-2 स्टीवन रीअरेंजमेंट, जैसा कि मैंने बताया हुआ है. सो हाउ डज दिस नंबर 1-2 कम अबाउट? ठीक है, इस केस में क्या आपके 1 और 2 एटम्स हैं, और यहाँ पर आपका केवल एक ही एटम इन्वॉल्व हो रहा है, और दिस इज द बॉन्ड दैट इज ब्रेकिंग. सो हाउ मेनी एटम्स आर इन्वॉल्व इन आइदर साइड? 2, एंड दिस साइड इज 1. सो इट इज 1-2 स्टीवन्स रीअरेंजमेंट. तो जब आपका ये कार्बेनियन अटैक करता है इस कार्बन पे, दिस कार्बन बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा क्या है कि इट इज positively charged, it is withdrawing the electron density, so this carbon nitrogen bond becomes weak. So this opens to give you compound number 1, जो कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में भी. ठीक है, so basically what we are forming is this 6-membered ring. ठीक है, now let us look at other options कि अगर हमारा जब HA और HC abstraction होगा तब कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे. सेम क्वेश्चन. सो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि व्हाट वी हैव डन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी एब्स्ट्रैक्ट द HA प्रोटोन. ठीक है, जब आपका यहाँ से प्रोटोन HA एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सो दिस कार्बेनियन नाउ इट कैन अटैक दिस particular hydrogen, and as a result of which this carbon nitrogen bond will cleave and it will open. So what it will give rise to the formation of this particular compound, जो कि आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 है. हमारा ये वाला फेवर्ड क्यों नहीं है? सो इफ यू काउंट द रिंग साइज, टोटल रिंग साइज इसके अंदर व्हाट यू आर गेटिंग इज 7 मेंबर्ड. हमको पता है किसी भी सिनारियो के अंदर 7 मेंबर्ड इज नॉट फेवर्ड. ठीक है, अदरवाइज अगर आप लॉजिकली सोचें तो कार्बेनियन जनरेशन नेक्स्ट टू अ फिनाइल इट इज मच मोर फेवर्ड, राइट? क्योंकि ये कार्बेनियन हमारा क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा. ठीक है, लेकिन दूसरे अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्हाट वी हैव इज दिस मिथॉक्सी ग्रुप ऑन दी एरोमेटिक रिंग विच इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. सो दिस रिंग इज already electron rich. Honestly, it doesn't need any extra electrons to get further stabilized. Second thing, जब यहाँ generate भी है, what you end up getting is a formation of 7 members, so that is not favored. Now let us look at what happens when you abstract this HC. ठीक है, इस पोजीशन के ऊपर जब एब्स्ट्रैक्शन होता है तो सेम चीज़ है, दिस कार्बेनियन अटैक्स दिस कार्बन एंड देन व्हाट यू हैव इज अ रिंग ओपनिंग. सो व्हाट यू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, अगेन हम इस नाइट्रोजन को इंक्लूड करके रिंग साइज देखते हैं. टोटल रिंग साइज इज अगेन 7 मेंबर्ड. सो हियर अगेन दिस इज नॉट फेवर्ड. ये वाला ऑप्शन था हमारा ऑप्शन 3. सो फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन सो फार, और ये ऑप्शन 2 तो आप क्लियरली नेगलेक्ट कर ही सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा इलॉजिकल ऑप्शन है. सो फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फ्रॉम द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री, सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, आप समझ गए होंगे किस वजह से. नाउ लेट अस लुक एट द अदर प्रॉब्लम.
सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वाज आस्क्ड बेसिकली द पहला हमारा स्टेप था दैट इज द वेरी ट्रेडिशनल केमिस्ट्री एंड सेकंड स्टेप इज बेसिकली व्हाट यू आर कैरिंग आउट अ रेडिकल कैटलाइज साइक्लाइजेशन. सो मैंने रेडिकल केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है पूरा का पूरा, उसमें प्लेलिस्ट एंड एवरी सॉर्ट ऑफ एग्जांपल हैज बीन इंक्लूडेड देयर. सो लेट अस ट्राई एंड लुक एट दी सॉल्यूशन. सो अगर हम देखें तो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, पहला स्टेप तो हमारा क्या है कि दिस एलाइलिक अल्कोहल इज अटैकिंग दिस एल्कीन. अगर हम देखें तो व्हाट दिस इथॉक्साइड व्हाट इट डज, इट ऑक्सीजन के अगर हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कमिंग हियर, सो अगर इसका हम एक तरह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर टाइप करें देन वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट दिस कार्बन इज प्रीटी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक. तो अगर अल्कोहल का हमारा अटैक होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस वाले कार्बन के ऊपर हमारा अटैक होगा. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. सो द ऑक्सीजन इट अटैक्स दिस पर्टिकुलर कार्बन, सो इट गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट पे हमारा हमको पता है कि ये वाला जो कार्बन है दिस इज kind of a nucleophilic, ठीक है, इसमें नेगेटिव चार्ज है. सो व्हाट इट डज, इट अटैक्स द ब्रोमो. सो व्हाट यू इंट्रोड्यूस इज द ब्रोमो. सो हमारे पास ये जो सक्सिनामाइड एनाइन जनरेट हुआ था, व्हाट इट डज, इट एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन टू गिव यू दिस कंपाउंड 1, ठीक है, जो कंपाउंड 1 हमको मिल गया है. अब सेकंड स्टेप में व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली द रेडिकल कैटलाइज्ड साइक्लाइजेशन. तो हमको पता है कि AIBN इज नथिंग बट AIBN इज अ रेडिकल इनिशिएटर. और जैसे ही हम AIBN को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, यू हैव टू हीट इट टू ओनली 70 डिग्रीज. व्हाट इट डज, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेडिकल. और इस अगेन रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स आप देख सकते हैं इज द जनरेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन. आई हैव सेड दिस मैनी टाइम, व्हेनेवर यू हैव these neutral molecules getting out of the system, ejecting, forming during the reactions like CO2, N2, water, those processes are always exothermic. So what it does basically, जैसे ही आपका ये radical generate होता है, what this radical does, this abstracts this hydride from tributyl tin hydride to generate this tributyl tin radical. अब इस ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल जैसे ही जनरेट होता है, what it does, it abstracts this bromine to generate a radical at this position. Now अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि it is undergoing 5-exo trig cyclization, मतलब आपका 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है. और हमको मैंने कई बार बोला है कि जब भी हम रेडिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, द 5 membered is always favored over 6 membered because of the steric reasons, ठीक है. तो आपका जब जैसे ये कंपाउंड हमारा जनरेट हुआ, दिस रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट्स द प्रोटॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन रेडिकल फ्रॉम द ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड टू गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट. सो अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 और 4 को तो हम नेगलेक्ट कर ही सकते थे बेस्ड ऑन दी कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो हमने अपनी रिएक्शन पाथवे था हमारा. अब हमारा स्टूडेंट कहाँ अटक जाता, ऑप्शन 1 और 1 और 2 के अंदर, क्योंकि 2 के अंदर इट इज़ शोइंग अ 6 मेंबर्ड, और जनरली हमको लगता है कि 6 मेंबर्ड इज़ फेवरेबल, बट जबकि इन रेडिकल केमिस्ट्री एज आई सेड it is always the 5 membered which is favored. So that the correct option for this particular question was option number 1. Let's look at another question. So the next question that was asked, it was again, it's a straightforward for this particular, to answer this question what we needed, you needed is a basic understanding of chemistry, that's it. So what we have is this tribromophenol. What do you do with, basically when you brominate it, what do you end up getting is a generation of this 2,4,4,6 tetrabromo 2,5 cyclohexadienone. So what this is basically sometimes used as a reagent for the selective monobrominations of various एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है. तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि इससे जैसे आपने रिएक्ट किया, व्हाट यू जनरेट इज दिस पर्टिकुलर रिएजेंट. अब क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई नॉट ऑप्शन नंबर 3, व्हाई नॉट ऑप्शन 4. पहला तो हमारा चीज़ होता है कि अगर ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन ग्रुप और साथ में एक कार्बोनिल, सो यू कैन क्लियरली सी द लॉट ऑफ स्टीयरिक रीजन. पहले तो स्टीयरिक रीजन्स हो गए जिसकी वजह से आपका ये नहीं बनता है, ठीक है. सो वंस यू जनरेट दिस ब्रोमीन, हमारा क्या ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट एक तरह से कह लें, एंड देन व्हाट यू हैव इज दिस पर्टिकुलर हमारा कंपाउंड. अगर इसके अंदर CF3 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, एंड दिस इज मैटर डायरेक्टिंग, ठीक है, मैटर डायरेक्टिंग. अगर हम इन दोनों ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 और 2 अगर हम देखें तो इनके अंदर दोनों के दोनों केसेस के अंदर हमारा कहीं पर भी मेटा पोजीशन के ऊपर हमारा ब्रोमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, एक तरह से. तो हमको एक चीज़ तो समझ आ गई कि इट इज़ दिस डाइमिथाइल एमीन विच इज़ डायरेक्टिंग दी ब्रोमिनेशन ऑन दिस रिंग. और हमेशा याद रखिएगा दिस रिएजेंट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर दी मोनोब्रोमिनेशन, ठीक है, एरोमेटिक स्पीशीज़ का. और हमको पता है कि इट इज़ ऑलवेज दी पैरा दैट इज़ प्रेफर्ड ओवर दी ऑर्थो. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या था, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है.
So this is a very interesting question. So what we had is basically हमारा ये cyclohexene olefin था. So what we are doing is an NBS bromination. उसके बाद this has been used as an electrophile. This acid has been used as an electrophile to open the bromonium ion intermediate. और हमको various options दिए हुए हैं. देखिए अगर हम क्लियरली देखें तो यहाँ पर हमारा ब्रोमिनेशन हमारा होगा फ्रॉम बिलो द प्लेन, क्योंकि हमारा ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. ठीक है, सो इट वाज नो ब्रेनर कि हमारा जो ब्रोमिनेशन इज गोइंग हैपनिंग फ्रॉम बिलो द प्लेन. अगर हमारा ब्रोमिनेशन बिलो द प्लेन है तो हमारा ये एसिड कहाँ से ओपन करेगा. लेट अस इमेजिन हेयर ब्रोमोनियम आयन. तो हमको पता है कि अगर एसिड इस साइड पे अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा स्टेबलाइज होता है. ठीक है, तो उससे भी हम इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट अगेन मैं आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ पे मेरा फेवरेट मॉलिकुलर मॉडल्स का मैं इस्तेमाल करूँगा. आई रियली लव यूजिंग दीज मॉलिकुलर मॉडल्स टू मेक द अंडरस्टैंडिंग मच मोर ईजियर, ताकि जब भी आप एग्जाम के अंदर इफ़ यू लुक एट सच क्वेश्चंस दैन यू कैन क्लियरली क्विक इमेजिन यू नो द स्ट्रक्चर्स इन योर मॉलिक्यूल. आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, पर आपको ये यूज़ करके वो कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लाई करना है. सो अगर हम देखें तो व्हाट वी हैव इज दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, ये वाला दूसरा पिक्चर है, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हम इसकी बात कर रहे हैं. और इस कार्बन डबल बॉन्ड के बाद व्हाट वी हैव इज दिस मिथाइल ग्रुप, जो कि यहाँ पे हमें यहाँ पे भी दिख रहा है. एंड दिस इज द साइक्लोप्रोपेन रिंग. ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये कार्बन मिथाइल, ये कार्बन, ये मिथाइल. ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग की. यहाँ पर दिस इज द साइक्लोप्रोपेन रिंग हैविंग दिस 2 मिथाइल ग्रुप. आप क्लियरली देख सकते हैं, बाहर से भी मैं देख सकता हूँ. अगर हमारा ऊपर से ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन इन इट सेल्फ इज अ बिग साइज मॉलिक्यूल. ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रोमिनेशन हमारा कहाँ से प्रेफर्ड होगा, फ्रॉम बिलो द प्लेन. ठीक है, उसके बाद जब हमारा ब्रोमिनेशन हुआ इट इज़ प्रेफर्ड फ्रॉम बिलो द प्लेन. सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू लुक लाइक. ठीक है, क्योंकि स्टीयरिक्स की वजह से हियर स्टीयरिक्स आर प्लेइंग द मेजर रोल फॉर द ब्रोमिनेशन. ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द फर्दर पार्ट. क्या हो रहा है अब इस क्वेश्चन में. So what is happening, as I said that bromination is taking from below the plane. अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब हमारा ये हमारा ऑक्सीजन, इसके ये जब ऑक्सीजन इधर आते हैं, सो दिस ऑक्सीजन अटैक्स हेयर एसिड का. वो यहाँ अटैक क्यों करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल हेयर देन एज कम्पेयर टू दिस साइड. क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारा, अगर हमारा ब्रोमो को हम ओपन करें सो द पॉजिटिव हेयर इज टर्शरी. ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ऑक्सीजन अटैक करता है. सो दिस इज द इंटरमीडिएट दैट यू आर गेटिंग. नाउ दिस इज़ योर कंपाउंड 1 जो कि इन्होंने पूछा हुआ है इस केस के अंदर. तो इसी को देख के हम साइड लाइन कर सकते हैं कि हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं. ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में से हमारा एक ना एक करेक्ट होगा. नाउ व्हाट दे आर यूजिंग इज बेसिकली पोटेशियम टर्शियरी बुटाक्साइड एंड टर्शियरी ब्यूटेनॉल. ठीक है, हम वी नो दीज इज यूज एज अ बल्की बेस. अब हम नज़र डालते हैं कि जो हमने हमारा एसिड यूज़ किया गया व्हाट इट हैज़ बेसिकली 2 फिनाइल ग्रुप और हमारा यहाँ कार्बोनिल है और आपने बेस यूज़ किया है. सो दिस पर्टिकुलर प्रोटोन इज वेरी एसिडिक इन नेचर. तो आपने जैसे ही बेस डाला वैसे ही आपने क्या किया, कार्बेनियन जनरेट किया. और इस कार्बेनियन का हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रिजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर ऐसा भी लिख सकते हैं. सो व्हाट हैपन्स, जैसे ही हमारा इसका इनोलेट बना, वो इनोलेट का ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया SN2 मैनर के अंदर, ब्रोमीन आयन रिलीज हुआ, कंपाउंड बेसिकली व्हाट यू गेट. ठीक है, आपको ये वाला कंपाउंड मिलता है. और आपने जैसे ही इसको एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट में एक्सपोज किया, मतलब दिस इज नथिंग बट बेसिकली टू कैरी आउट दी हाइड्रोलिसिस. ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए सो आपने इसको हाइड्रोलिसिस किया. सो व्हाट यू जनरेट इज दी कंपाउंड नंबर B. सो दैट वाज दी pathway via which this particular reaction takes place. ठीक है, let's look at another question. So अगर हमारा जो अगला क्वेश्चन था बेसिकली दैट वाज बेस्ड ऑन अ रिडक्शन रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड दी Merivian-Ponndorff वर्ले रिडक्शन. सो इस केस में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम कैरी आउट करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन. जैसे कि यहाँ पे हमारा कीटोन हो गया और हम यूज़ करते हैं कोई भी एल्यूमिनियम कैटलिस्ट. सो बेसिकली हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड हम यूज़ कर रहे हैं. नाउ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एंड व्हाट वी यूज़ इज़ अ सैक्रिफिशियल एल्कोहल. सैक्रिफिशियल एल्कोहल का मतलब कि इस रिडक्शन के लिए, मतलब इस अगर हम मान लीजिए कि हम इस पर्टिकुलर कीटोन को जो कि एसीटोन है, इसको अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं अल्कोहल में, तो हमको एक ऐसा अल्कोहल यूज़ करना है जो अपना सेक्रीफाइस दे दे इस पर्टिकुलर पाथवे के लिए. क्योंकि इसमें क्या होता है, अपना सेक्रीफाइस देते समय हमारा जो अल्कोहल होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोन के अंदर.
तो इन अ वे अगर हम इस रिएक्शन को अगर ऑक्सीडेशन के नज़रिए से देखें तो हम इसको एक ऑक्सीडेशन का नाम भी दे सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड दी ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन जहाँ पे हम ओपन एयर ऑक्सीडेशन भी कर रहे हैं और इसको हम रिडक्शन भी कहते हैं, मेरेवियन पॉइंट ऑफ वर्ले रिडक्शन। तो अगर एक सिचुएशन ऐसा जनरेट हो जाए कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हमारा अल्कोहल भी प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है, तो हम क्लियरली सोच सकते हैं कि क्या हो सकता होगा। तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारा अल्कोहल होता है उसका हमारा क्या होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमारा जो कीटोन होता है उसका हमारा रिडक्शन हो जाता है। जैसे कि एक हम ये देखते हैं, लेट अस सपोज अगर हमारा दिस इज़ द कीटोन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और इस वाले हमारे फिनॉक्साइड के साथ व्हाट वी हैव इज दिस कायरल अल्कोहल। मान लीजिए हमारा कायरल अल्कोहल है यहाँ पे, तो आपका एल्युमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम हमको पता है एल्यूमिनियम इज काइंड ऑफ अ लुइस एसिड, ऑर्बिटल के अंदर वो आ जाएं तो ऑक्सीजन का और ये वाले ऑक्सीजन ये क्या करते हैं कि दोनों के दोनों दे कोऑर्डिनेट विद दी एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं तो होता क्या है कि आपका हमारा ये जो कायरल अल्कोहल है, अगर हम इसमें देखें इस कायरल अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन है दिस इज कमिंग टुवर्ड्स अस, अगर ये हमारी तरफ आ रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, दिस hydride, now this hydrogen is behaving as an hydride, so this is actually this is the actual reducing agent that is generated in C2 क्योंकि ये हमारी तरफ आ रहा है, so this has been it is getting added on to this carbonyl from द टॉप फेस। और अगर ये टॉप फेस से हमारा रिएक्ट कर रहा है तो हमारा यहाँ पर जो अल्कोहल जनरेट होगा दिस इज गोइंग टू गो बिहाइंड द प्लेन, तो ठीक है वो बिहाइंड द प्लेन जाएगा। सो व्हाट यू विल जनरेट इज दिस पर्टिकुलर अल्कोहल और इन प्रोसेस आपने देखा ये हमारा अल्कोहल क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ये वाला हमारा कीटोन क्या हुआ, हमारा रिड्यूस हो गया। और व्हाट अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा याद रखें, ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आर है तो इसकी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी। अब यही कॉन्सेप्ट हम अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। सो द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर अल्कोहल इज एस, एल्युमिनियम क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है उनके साथ, ठीक है। कोऑर्डिनेट करने के बाद क्या हो रहा है, अगर दिस अल्कोहल इज कमिंग टुवर्ड्स अस, इसका मतलब जो हाइड्राइड है इट इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन, अगर ये बिहाइंड द प्लेन जा रहा है तो पीछे से ही ऐड होगा, और इफ इट इज गोइंग टू बी एडेड फ्रॉम बिहाइंड द प्लेन सो दिस न्यूली जनरेटेड OH इज गोइंग टू कम टुवर्ड्स अस। सो इन द प्रोसेस हमारा ये अल्कोहल हमारा ऑक्सीडाइज हो गया और ये वाला रिड्यूस हो गया। सो द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट इज दिस वन। सो द करेक्ट आंसर इसका क्या था, ऑप्शन नंबर 2। लेट्स लुक एट अनदर प्रॉब्लम। सो जो दूसरा प्रॉब्लम था ये तो काफ़ी एक्सटेंसिवली मैंने बनाया हुआ है प्रॉब्लम। सो वी नो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव इज एन एल्डिहाइड, सो व्हाट वी आर कैरिंग आउट इज अ वर्टिकल एलिमिनेशन एंड द बेस वी आर यूजिंग इज NaHMDS व्हिच इज नथिंग बट सोडियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाजेन। इससे क्या एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। सो व्हाट यू जनरेट इज एन अनस्टेबलाइज्ड हैलाइड, जैसे मैंने बोला इट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो द मेजर प्रोडक्ट दैट यू गेट इज द Z हो गया हमारा, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो व्हाट यू गेट इज द Z प्रोडक्ट। और दूसरा वाला इसके ऊपर टकाई ओलिफिनेशन पे मैंने वीडियो बनाई भी हुई है एंड आई थिंक मैंने पहले उस समय भी जब वीडियो बनाई थी आई टोल्ड गाइज दैट दिस एक क्वेश्चन इस पर डेफिनेटली आएगा ही आएगा इन कमिंग एग्जाम्स, मैंने कई बार बताया था। सो टकाई ओलिफिनेशन की जो खासियत क्या है इज़ व्हाट यू गेट इज़ एन एक्सक्लूसिव ई आइसोमर्स, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह का जैसा कि मैंने यहाँ डिपिक्ट किया है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट यू स्टार्ट विद एज एन आयोडो फॉर्म, आप क्रोमियम क्लोराइड से इसको ट्रीट करते हैं। सो व्हाट यू जनरेट इज एन दिस इंटरमीडिएट। सो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका क्रोमियम इज ऑक्सीडाइज टू क्रोमियम 3, एक और मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमियम हमारा क्लोराइड यूज़ होता है, ठीक है। सो व्हाट यू जनरेट इज दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट। उस इंटरमीडिएट में क्या होता है कि आपका ये जो कार्बन होता है ये इसके ऊपर अटैक करता है एल्डिहाइड पे। सो इन अ वे व्हाट यू जनरेट इज, अगर हम ये देखें हमारा इसका न्यूमन कॉन्फर्मेशन देखें, इट विल अलाइन इन सच अ मैनर कि हमारे दो क्रोमियम दोनों के दोनों, ठीक है, दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। किस लिए, क्योंकि एक दूसरे का इनका स्टीयरिक बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ द रीज़न वाई दे टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। और दूसरी बात ये होता है कि क्योंकि इन दी एलिमिनेशन वे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है इनका एलिमिनेशन होता है टू गिव यू दी ओलिफिन, सो दे हैव टू बी एंटीपेलिप्लेनर टू ईच अदर। और इसका अगर हम दूसरा न्यूमन प्रोजेक्शन करके द शॉहर्स प्रोजेक्शन देखें तो इस मॉलिक्यूल को हम इस तरह से भी देख सकते हैं समझने के लिए। नाउ व्हेन द एलिमिनेशन विल टेक्स प्लेस वी कैन क्लियरली सी बोथ द हाइड्रोजन दे आर ट्रांस टू ईच अदर, सो द ओलिफिन दैट यू जनरेट इज ट्रांस। यहाँ से भी हम करके दे सकते हैं कि हमारा हाइड्रोजन क्या है कि हमारा दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या है, ट्रांस है, सो द ओलिफिन दैट यू गेट इज द ट्रांस, ठीक है, क्लियर।
एक चीज़ याद रखना, टकाई ओलिफिनेशन में एवरी टाइम व्हाट यू गेट इज द एक्सक्लूसिव ई आइसोमर विद मोर देन 95% सिलेक्टिविटी के साथ E2Z. So option was 4-1, that was the correct option. So the next question that was based on the NMR का question, बहुत see I really loved this problem. The reason why is because for the first time there is no option जिसके अंदर पैरा सब्स्टिट्यूशन हो. That is the only reason why I love this problem. So इसको क्रैक करने के लिए हमको कुछ स्टेप वाइज ऑर्डर के अंदर जाना पड़ता था, थोड़ा NMR डाटा को देखना पड़ता, ठीक है, और हम इसको बहुत आसानी से क्रैक कर पाते. ठीक है, लेट अस लुक एट हाउ वी कैन अप्रोच सच प्रॉब्लम्स. तो व्हाट वी हैव इज अ डबलेट, इज अ सिंगलेट, इज़ अ डबलेट एंड अ ट्रिपलेट. मतलब इसका मतलब ये है कि इस तरह का अरेंजमेंट हमारा तभी हो सकता है कि अगर सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, मेटा है. ठीक है, और तो सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं ऑप्शन 4 को नेगलेक्ट कर रहा हूँ. उसका रीज़न बताता हूँ क्यों. क्योंकि जब हमारा सब्स्टिट्यूशन क्योंकि अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेटा होगा तभी यह हाइड्रोजन जो होगा इट विल अपीयर एज अ सिंगलेट, दिस हाइड्रोजन विल अपीयर एज डबलेट, दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू कपल विद बोथ ऑफ देम, सो इट्स गोइंग टू अपीयर ट्रिपलेट, और ये वाला हाइड्रोजन हमारा इससे कपल करके डबलेट देगा. सो इसका मतलब आप ऑप्शन 4 को तो वही नेगलेक्ट कर सकते हैं. दूसरी चीज़, NMR को और अच्छे से देखते हैं. नाउ व्हाट वी हैव इज अ 2 ट्रिपलेट्स. हम यहाँ पर सॉरी नॉट 2 ट्रिपलेट्स, बट सो व्हाट वी हैव हियर इज बेसिकली 2 सिंगलेट. 1 सिंगलेट ऑफ 3 प्रोटॉन एट 2.85 एंड 1 सिंगलेट ऑफ 3 प्रोटॉन 2.95. अब ये 2 सिंगलेट्स के होने का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट जो हम डाई मिथाइल एमीन से हम डील कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी एमाइड. एमाइड के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं. सो व्हाट यू गेट इज बेसिकली देयर इज अ कन्फर्मेशन लॉक दैट हैपेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बोथ द मिथाइल ग्रुप दे रिजोनेट एट डिफरेंट डेल्टा वैल्यूज इन दी NMR. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो क्वेश्चन है, हमारा जो भी आंसर है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, उसके अंदर हमारा जो डाइमिथाइल है इट हैज़ टू बी एमाइड, इट कैन नॉट बी एमीन. अगर ये केस है तो हम ऑप्शन 1 के अंदर क्या है कि हमारा डाइमिथाइल एमीन दिया, इसको हम क्लियरली नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 को नेगलेक्ट कर दिया बेस्ड जस्ट सिंपली लुकिंग एट दी NMR को ही देख के. अब हम क्या करेंगे, NMR को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं. नाउ लेट अस लुक एट दी मास का डेटा देख लेते हैं. ठीक है, मास का अगर हम डेटा देखें तो अगर आई एम स्टार्टिंग विद ऑप्शन नंबर 2. ओके, सो अगर उसका क्या है कि हमारा M+ है 2O6. अगर इसके अंदर से देयर इज अ फ्रेगमेंटेशन दैट इज हैपनिंग हियर, सो व्हाट यू आर जनरेटिंग इज अ बेंजाइल कार्बोकैटायन. अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन को जनरेट करें सो दिस इज गोइंग टू गिव यू M/Z 106 जो कि मैच कर रहा है एग्जैक्टली. एंड वट यू इन दोनों को माइनस करें तो 100 माइनस हो जाएगा. सेकंड चीज, जस्ट लाइक कीटोन्स, कीटोन के केस में क्या होता है, वट यू गेट मास के अंदर मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट अगर आपका गामा प्रोटोन हो. ठीक है, इस केस में भी वट यू हैव इज अल्फा बीटा गामा प्रोटोन. इमाइड में भी वही होता है. ठीक है, यू डू गेट मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट की बहुत अच्छी पीक आती है. सो यहाँ से हमने क्या किया कि अल्फा बीटा गामा हमारा फ्रेगमेंटेशन हुआ. सो व्हाट डू यू जनरेट इज दिस स्टाइरीन हैविंग दिस एनिलीन हैविंग दिस स्टाइरीन ग्रुप. इसका अगर हम मास देखें तो इट्स मास इज 87. दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग एंड दिस मास इज द रिजल्ट ऑफ मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट. सो इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, हमने ज़्यादा कुछ वो नहीं किया, हमने बेसिक समझा है पीक्स को और हमने करेक्ट आंसर बता दिया. दूसरी चीज़ एक्चुअली ऑनेस्टली अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में और पता हो तो जनरली क्या होता है कि आपका ब्रॉड सिंगलेट ऑफ 2 प्रोटॉन इज यूजली एनिलीन का ही आता है. ठीक है, एनिलीन के पीक्स हमेशा थोड़े से हायर होते हैं. और अगर आपका एमीन का ये जो होगा सिंगलेट, दैट्स वुड हैव स्टेड समवेयर अराउंड 2.5 या 2.8, उससे ज़्यादा ये नहीं जाता. सो यू कैन ऑल्सो नेगलेक्ट ऑप्शन 3 बेस्ड ऑन दिस सिंगलेट. बट अगेन नाइट्रोजन के जो साथ हाइड्रोजन होते हैं एमीन के, दे आर नॉट वेरी रिलायबल. तो इसको मैं यहाँ पर इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा. बट अगेन बाकी दूसरे हमारे चीज़ें देख के आप क्लियरली आंसर पे अराइव कर सकते थे. ठीक है, लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन. So here what the question that we have is basically based on, पहला हमारा स्टेप क्या कर रहे हैं कि what we have is a ketone. So what we are using is this is nothing but a Horner's Wedworth Emmons ओलिफिनेशन. हमको पता है इसमें मेजर E मिलता है हमें, बट इस केस के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा डायरेक्टली क्या हो रहा है कि
ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप हमारा ओलिफिनेशन हो रहा है, ठीक है। सो द ऑप्शन 1 हमें पता है कि इज द दिस वन, सो द कंपाउंड 1 इज दिस। सो हम क्लियरली नेगलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 को और ऑप्शन नंबर 2 को। सो आउट ऑफ 3 and 4 1 हैज़ टू बी राइट। सो द सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, व्हाट यू आर यूजिंग इज सोडियम हाइड्राइड एंड नाइट्रोमीथेन। सो व्हाट यू आर जनरेटिंग, बेसिकली सोडियम हाइड्राइड इस पे एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है प्रोटोन, सो व्हाट यू आर जनरेटिंग इज दिस का प्रोटोनेशन हो गया टू गिव यू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। नाउ हमको पता है कि अंदर अगर हम हाइड्रोजनेशन कंडीशन में एक्सपोज करें तो हमारे एस्टेरिक ग्रुप दे स्टे एज सच, उनको कुछ नहीं होता। व्हाट हैपेंस इज बेसिकली नाइट्रो कैन बी रिड्यूस टू एमीन, और नाइट्रो जैसे ही हमारा एमीन में रिड्यूस हुआ, नाइट्रोजन के लोन पे उन्होंने अटैक किया कार्बोनिल पे, ठीक है, रिंग ओपन हुई, इथॉक्साइड लीव्स टू गिव यू दिस पर्टिकुलर साइक्लाइज्ड लेक्टम, ठीक है, हमारा लेक्टम मिल जाता है हमें। तो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर 3। पूरा का पूरा हम लॉजिकल वे में बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट अनदर प्रॉब्लम। सो दिस अगेन दिस इज़ क्लियरली बेस्ड ऑन द इपॉक्सीडेशन, और इस पर मैंने एक्सटेंसिवली वीडियो भी बनाया हुआ है, मॉलिक्यूलर मॉडल से भी समझाया, नॉर्मली भी समझाया हुआ है। सो आई मेड अ वीडियो ऑन। सो पहले हम देख लेते हैं MCPBM। MCPBM के केस के अंदर हमें पता है दिस इज नथिंग बट अ इपॉक्सीडेशन एजेंट, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। अगर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, सो हियर व्हाट वी आर डीलिंग इज बेसिकली, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। सो हेयर बेसिकली व्हाट वी आर डीलिंग विद इज एन एलाइलिक अल्कोहल। अगर हम कोई भी MCPBM से हम ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर क्या करता है, ऑक्सीजन हमारा कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। दिस इज एन MCPBM। यहाँ पे R ग्रुप आप कंसिडर कर लीजिए, ये पूरा का पूरा एराइल, ठीक है। सो हमारा ऑक्सीजन का हाइड्रोजन क्या करता है, ये MCPBM रिएजेंट के ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट करता है, और उसकी वजह से क्या करता है कि ये इपॉक्सीडेशन सेम फेज से डिलीवर करता है। अब सवाल हमारा ये है कि यहाँ पर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, वाई इज इट कमिंग फ्रॉम द टॉप फेस, वाई नॉट फ्रॉम द बैक फेस, क्योंकि ये हमारा रिएजेंट कहीं पर भी हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिक्टेट नहीं कर सकता। तो इस केस में जो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिक्टेट हो रही है वो ऑलरेडी जो एक स्टीरियो सेंटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रही है। सिंस दिस पर्टिकुलर स्टीरियो सेंटर इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन, सो इसका मतलब ये है कि इससे पीछे की तरफ, मीन्स बिहाइंड द प्लेन, इट हैज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड दैट बल्क। तो इस केस के अंदर जो इपॉक्सीडेशन हमारा फेवर्ड होगा, दैट विल बी फेवर फ्रॉम द टॉप फेस। दैट इज द रीजन वाई व्हाट यू आर गेटिंग इज दिस पर्टिकुलर इपॉक्साइड, ठीक है। यहाँ पर हम इसे बोलेंगे सबस्ट्रेट कंट्रोल्ड इपॉक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्सी डायरेक्टेड सबस्ट्रेट कंट्रोल इपॉक्सीडेशन। नाउ अब दूसरा केस मैंने बताया हुआ है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन पे, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कैरी आउट द इपॉक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल। अब इस केस के अंदर इट डज नॉट मैटर, ठीक है, हमारी जो सबस्ट्रेट के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री डज नॉट प्ले अ ह्यूज रोल, ठीक है। ऑलरेडी मैच और मिसमैच का कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो हम कायरल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्लियरली आपका डिक्टेट करता है क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलेगी। फॉर एग्जांपल इस केस में व्हाट यू आर यूजिंग इज बेसिकली नेगेटिव डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट, ठीक है। एंड जो मैंने अपनी वीडियो, हर एक किसी का एक डिफरेंट मेथड है। सो व्हाट आई यूजुअली रिमेंबर कि अगर आप नेगेटिव डाइथाइल टार्ट्रेट यूज़ करें, डाइसोप्रोपाइल या टार्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री SS है, तो जो इपॉक्सीडेशन होगा वो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी RR ही होगी, और कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये मेरा वाला तरीका है याद रखने का। सो जो आपको इपॉक्सीडेशन यहाँ पर होगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री RR होगी। इसके लिए अगेन आपको R और S स्टीरियो कन्फर्मेशन आना चाहिए, बट अगर मैंने बोला हुआ है कि हर एक किसी का एक डिफरेंट तरीका है इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेडिक्ट करने का, आप अपना यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है, ठीक है। लेट्स लुक एट अनदर प्रॉब्लम। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर 4. So this is the problem that was, again, it's an interesting problem. Basically this was based on Hoffman rearrangement, ठीक है। Hoffman rearrangement के अंदर हमें पता है isocyanate is an intermediate that forms, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने हमारा ये स्टार्टिंग मटेरियल है, इसको मैंने बस इंटर कन्वर्जन किया है इसका। सो अगर हम इसका इंटर कन्वर्जन करेंगे तो आप क्लियरली इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बस सिंपल फंक्शनल ग्रुप नॉट फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, इसको जैसे एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज, जब आपको ये होता है तो when you expose an amide to NBS, so what is basically happening is the N brominated compound, so this is what you form. Now अब आपने क्या किया, इसको आपने सिल्वर एसिटेट से आपने इसको ट्रीट कर दिया, सिल्वर एसिटेट से ट्रीट किया, तो व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली द ब्रोमीन इट इज कोऑर्डिनेटिंग विद द सिल्वर, और जो सिल्वर एसिटेट के कार्बोनिल है इट इज इंटरेक्टिंग विद द हाइड्रोजन ऑफ द
एमाइड नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा रीअरेंजमेंट होता है हॉफमैन रीअरेंजमेंट में, कर्टियस रीअरेंजमेंट में, हमारा क्या होता है कि एल्काइल चेन शिफ्ट होती है टू फॉर्म दी आइसोसाइनेट, ठीक है, वही हो रहा है। सो दिस कार्बन मूव्स हेयर। सो क्योंकि सिल्वर ब्रोमो के साथ कोऑर्डिनेट करता है, हमको पता है इस डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स क्या है कि इज द एलिमिनेशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एसिटिक एसिड। सो इट कम्स हेयर। सो दिस कार्बोनिल it abstracts this hydrogen. So the side product or byproduct that you generate in this particular reaction is silver bromide and acetic acid. And what you are generating is this isocyanate. Isocyanate जैसे ही आपका फॉर्म होता है, हमको पता है दिस इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव। अगर कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है, वो अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल हमारा प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में ही, which is nothing but an alcohol. It attacks. So what it gives rise to the formation of is this कार्बामेट, ठीक है, साइक्लिक कार्बामेट मिल जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारा इस केस में क्या था, ऑप्शन नंबर 1। सो क्लियरली देख सकते हैं कि एक रादर देन गिविंग यू अ वेरी वेरी सिंपल वेल नोन रिएजेंट्स, दे हैव गिवन यू अ वेरी फैंसी लुकिंग रिएजेंट्स लाइक NBS और सिल्वर एसिटेट, जबकि कॉन्सेप्ट हमारा वही है जो हमने शायद क्लास 12 से पढ़ा हुआ होगा, हॉफमैन रीअरेंजमेंट का। लेट्स लुक एट अनदर प्रॉब्लम. So the next problem that was based on again a very well known reaction which is called Shapiro reaction. ठीक है, Shapiro reaction में what they are using is basically हमारे यहाँ पर हाइड्राजोन है एंटोसाइल हाइड्राजोन एंड they are using 2.2 इक्विवेलेंट एन बुटाइल लिथियम. तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि एक बुटाइल हमारा क्या है, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा नाइट्रोजन का ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है. सो व्हाट वी आर जनरेटिंग इज अ anion on nitrogen and also on the carbon. So this carbon, this lone pair of electron, they come back. So there is a shift of electron takes place and the tosyl group being a good leaving group, it leaves. उसके बाद क्या होता है कि lone pair of electrons on nitrogen, negative charge on nitrogen, it comes back and there is a release of nitrogen gas. Again the driving force here is the evolution of NO2 gas. और जैसे ही आपका ये olefinic कार्बेनियन बनता है, इट जस्ट वांट्स एनी कार्बेनियन. अगर आप यहाँ रिएक्शन क्वेंच कर दें, वाटर डाल देंगे तो आपको ओलिफिन मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ पर DMF डाल देंगे तो आपको यहाँ एल्डिहाइड मिल जाएगा. और हमने यहाँ पर क्या डाला, एक इलेक्ट्रोफाइल डाला. सो दिस इज नथिंग बट दिस कैन बी यूज एज अ रिएजेंट फॉर द ब्रोमिनेशन. कार्बेनियन ने ब्रोमो पे अटैक किया, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कम बैक एंड इट रिलीजेस इज गैस. सो रिएक्शन का अगेन ड्राइविंग फोर्स इस वाले का क्या है कि यू आर रिलीजिंग इज दिस इथिलीन गैस. ठीक है, तो व्हाट यू जनरेट इज दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 2. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि बेस थी IR के ऊपर बेस्ड है. नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको पता है कि हमारा जो यहाँ पर हमारा क्या है कि व्हाट वी हैव इज एन एस्टर, what we have is a ketone and what we have is a ketone, जबकि हमारा NH भी प्रेजेंट है कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल में. ठीक है, हमको देखते हैं कि हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अप्लाई करके कैसे करेक्ट सॉल्यूशन पे अराइव कर सकते हैं. ठीक है, सो हमको पता है कि ये चीज़ तो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी, डाटा और वैल्यूज़. हमको पता है कि कार्बोनिल रेजोनेट्स एट समवेयर अराउंड 1690, ठीक है, या 1700 के आसपास. कार्बोनिल हमारा इतने पे आता है IR में. सो व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ एस्टर, हमको पता है कि एस्टर के केस में जो ऑक्सीजन क्या करता है, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ईस्ट इटसेल्फ. अपनी तरफ जब वो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन होते हैं ये भी आने शुरू हो जाते हैं इस पर. सो उसकी वजह से क्या होता है कि ये कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड करैक्टर होता है बढ़ जाता है. अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है. अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू रिजोनेट एट मच हायर फ्रीक्वेंसी. मतलब ये 1735 से 7050 के बीच में कहीं ना कहीं रिजोनेट करेगा. बट कुछ भी वैल्यू, बट यू आर रेस्ट अश्योर, मतलब कोई भी हो, इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन दी कीटोन से उसकी ज़्यादा होगी. नाउ अब हम इस वाले केस की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग केस है. इस केस में एक्चुअली हो क्या रहा है आपका, इस केस में एक तरह का एंशिमरिक असिस्टेंस कह लें या इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन कह लें या कुछ तरह इस तरह का असिस्टेंस कह लें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन दे आर इंटरैक्टिंग विद दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल. हमको पता है कार्बोनिल आर यूजुअली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. सो देयर इज अ काइंड ऑफ एन इंटरैक्शन, इंट्रामोलिकुलर इंटरैक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस. सो इस इंटरैक्शन की वजह से दिस इज द काइंड ऑफ एन इंटरमीडिएट दैट माइट बी फॉर्मिंग हियर. और उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, हमारा ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, हमारा इसका करैक्टर वीक हो रहा है. अगर इसका वीक हो रहा है करैक्टर, सो दिस इज गोइंग टू रेजोनेट एट लेसर फ्रीक्वेंसी देन दी कार्बोनेट इटसेल्फ. अगर हम ये बेसिक लॉजिक्स को अगर हम ध्यान में रख के
करेक्ट आंसर देखने की कोशिश करें. सो वी आर गोइंग टू कम अप विद द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. दैट इज ester is going to resonate as the highest, and then ketone followed by this particular compound, although this is also a ketone, but it's something like this that is happening in this case. ठीक है. और अगला क्वेश्चन, ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली डील्स-ऑल्डर रिएक्शन के ऊपर बेस था. सो फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली डीसीएम में हम डील्स-ऑल्डर रिएक्शन कर रहे हैं. देखते हैं क्या हो रहा है. सो पहले स्टेप के अंदर हमारा क्या हो रहा है कि मैंने इसको नंबरिंग भी कर रखा है 1 2 3 4 5 6. सो डील्स-ऑल्डर रिएक्शन पहले स्टेप में टू गिव यू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, क्योंकि 1 और 4 के ऊपर पोजीशन के ऊपर ये कार्बन अटैच है. सो दिस इज गोइंग टू बिकम अ ब्रिज हेड पोजीशन. सो ये ब्रिज हेड पोजीशन हो गई. सो व्हाट यू जनरेट इज दिस पर्टिकुलर कार्बन. नाउ नेक्स्ट स्टेप पे व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली ट्रीटिंग विद एक्वस सोडियम सल्फाइड. अब हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम सोडियम सल्फाइड को वाटर में डालते हैं, व्हाट डू रिलीज इज अ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एंड व्हाट यू जनरेट इज अ NaOH. So this is nothing but this is a way to hydrolyze these sulfonamide species. ठीक है. हमारा जैसे ही हमारा NaOH जनरेट हुआ, हमारा OH ने अटैक किया, ठीक है, क्लोरोलीव किया. सो व्हाट यू जनरेट इज दिस, कि रिएक्शन में ऑलरेडी बेस है. सो बेस ने हमारा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया. सो व्हाट यू जनरेट इज अ नेगेटिव चार्ज हियर, नेगेटिव चार्ज वापस आया. सो व्हाट यू आर जनरेटिंग इज दिस स्पीशीज. सो इस रिएक्शन में हमारा क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारा रिलीज हो गया, और इस नेगेटिव चार्ज ने प्रोटॉन प्लग किया वाटर से, जो कि हमारा यहाँ रिलीज हुआ था टू गिव यू दी एमाइड. ठीक है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 वॉज दी करेक्ट ऑप्शन. लॉजिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. ठीक है. लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन. सो दिस वो क्वेश्चन वॉज अगेन बेस्ड ऑन द डील्स-ऑल्डर रिएक्शन, और इसके अंदर हमारा क्या है कि कीटीन है और हमारा क्या है एक ओलिफिन है. ठीक है. अगर देखा जाए कीटीन जनरली फेवर करते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. हम यहाँ काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4. ठीक है. 4 को तो वैसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. इस केस में हमारा क्या हो रहा है, हम रीजियो सेलेक्टिविटी थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं रादर देन गोइंग इनटू वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिनारियोस. नाउ अगर हम इस कीटीन को देखने की कोशिश करें तो हमको पता है कि कार्बोनिल क्या है, एक तरह से यहाँ हमारा ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड है. सो दिस कार्बन दिस इज ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. ठीक है. इसको हम एक तरह से ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए. और दूसरी तरफ अगर हम एल्कीन को देखें, अगर हम इस एल्कीन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करें या नेगेटिव चार्ज क्रिएट करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज़ मच मोर स्टेबलाइज, क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, टर्शरी है. लेकिन अगर हमारा वो इस वाली साइड से अटैक करता है, इस वाली साइड के अंदर अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे इमेजिन करें तो ये क्या है, सेकेंडरी है. तो हमको पता एक चीज़ समझ आ जाएगी कि ये वाला डबल बॉन्ड विल पार्टिसिपेट इन 2+2 साइक्लो एडिशन रादर देन दिस वन, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है कि मोर स्टेबल कंपाउंड हमारे रिएक्ट कर रहे हैं, मोर स्टेबल है, मोर रिएक्टिव एटम्स आर रिएक्टिंग. ठीक है. एग्जैक्टली वही होता है यहाँ पे 2+2 साइक्लो एडिशन हो रहा है. ठीक है. ये वाला क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नथिंग, दे आर जस्ट कंबाइनिंग टू गिविंग यू दिस डिजायर्ड कंपाउंड विच इज ऑप्शन नंबर 1. सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है टू गेट द डिजायर्ड आंसर. So the next problem, it is a very interesting problem. So this problem was basically based on the enantiomeric assistance, और I really love this problem. और यहाँ पे हमको बताया हुआ है कि अगर हम जैसे इसका कंपाउंड नंबर 1 का रिएक्शन करते हैं ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, वी जनरेट X विच गिव्स यू आइदर A, और A भी मिलता है या दोनों मिलते हैं A और B. इसी तरह से B है, उसको भी हमने किया, सो वी गेट C and D. हमसे पूछा गया है कि, और हमको थोड़ा सा बताया गया है कि जो इंटरमीडिएट की, ठीक है, इंटरमीडिएट एट व्हाट फ्रीक्वेंसी दे रिजोनेट इन C13 NMR, वो थोड़ा हमको बताया हुआ है. ठीक है. I think I made a video on the reactive intermediates. In that I have discussed about the concept of neighboring group participation and enantiomeric assistance. वहाँ I clearly discussed that enantiomeric assistance or neighboring group participation is extended when it is required. ठीक है. जिन केसेस में वहीं पर ही होगा जहाँ पर वो रिक्वायर्ड है, कुछ केसेस के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. उन केसेस में जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं होता है, इट इज़ डजंट हैपन. एंड उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इस बार. सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन.
सो पहले केस में व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली अगर हमारा टोसिलेट यहाँ से रिलीज होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन है, सो व्हाट वी हैव इज अ पॉजिटिव चार्ज. नाउ इस केस में आपका क्या हो रहा है, दिस डबल बॉन्ड इट इज लेंडिंग इट्स एंशीमरिक असिस्टेंस. मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पार्टिसिपेट करता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन देता है. सो इस पॉजिटिव चार्ज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. और दूसरा हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं. और इसका अगर हम नेट अगर रेजोनेंस लिखें तो एक तरह से दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन. सो दिस इज द स्पीशीज दैट यू जनरेट. नाउ अब सवाल है कि इसके अंदर हमारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्यों हुआ. उसका रीजन ये है कि बिकॉज ऑन दिस एरोमेटिक रिंग व्हाट यू हैव इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. मतलब हमारा ये पूरी की पूरी रिंग दिस इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर. और ऊपर से व्हाट यू हैव जनरेटेड इज अ पॉजिटिव चार्ज. सो दिस पॉजिटिव चार्ज हैज नो अदर वे देन टू to get any sort of a support, any sort of a participation from some other group. So that is the reason why यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इसका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है. अगर आपका ये इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, सो इसका मतलब आपका क्या है कि जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो हमारा एक साइड से ही एक्सक्लूसिवली अटैक करेगा, ठीक है, वो दो साइड से अटैक नहीं करेगा. सो व्हाट यू जनरेट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लूसिव ए. मतलब इस केस में आपका हमारा एक्सक्लूसिव ए बन रहा है. हमने यहाँ पर एक्चुअली एनएमआर वैल्यूज़ का यूज़ नहीं किया, वी शुड हैव डन दैट, बट एक्सक्लूसिव हमारा ए बनेगा. नाउ सेकंड केस के अंदर देख लेते हैं, सेम फंडा हुआ, लेकिन यहाँ पर अब आपका एक चीज़ जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड, हमारा यहाँ ओलिफिन है लेकिन ऑन द एरोमेटिक रिंग व्हाट यू हैव इज अ मिथॉक्सी ग्रुप. हमको पता है कि मिथॉक्सी ग्रुप कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, हमारा ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन डोनेट. तो यहाँ पर इस केस के अंदर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इट डज नॉट टेक प्लेस, क्योंकि हमारे इंदस में ऑलरेडी इस केस में एरोमेटिक रिंग पे मिथॉक्सी ग्रुप है विच इज़ रेडी टू प्रोवाइड्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू स्टेबलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज. और हमारा जैसे ही हमारा ये इंटरमीडिएट बनता है वाई, जैसे ये बनता है, सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि दिस नेगेटिव चार्ज कैन अटैक फ्रॉम दी आइदर साइड. सो व्हाट इट डज, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ C+D. तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा लगाना था एंड वी वुड हैव गॉट द राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लेट्स लुक एट अनदर प्रॉब्लम. So the another problem again, अगर आप देखेंगे I made a video on reactive intermediate carbanion, you just go to 42 minutes 42 seconds. क्लियरली आपको समझ आ जाएगा. डिस्कस्ड दिस, मैंने ये बताया भी हुआ है कि वेन एवर यू हैव दिस अल्फा अल्फा डायहेलोकीटोन और अल्फा अल्फा डैश डायहेलोकीटोन, जब भी आप उनको बेस से ट्रीट करते हैं व्हाट डू यू जनरेट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एंड एस्टर्स. तो इसका अगर दैट इज ट्रू, इसका मतलब आप क्लियरली नेगलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 को. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है वो मैकेनिज्म देख लेते हैं. ठीक है, ये मैकेनिज्म हमारा क्या हो रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फेवरेस्की रीअरेंजमेंट्स. हमारा सोडियम methoxide it abstract this particular proton, it generates negative charge, negative charge attacks this carbon, bromide ion is released. So once you have this particular intermediate sodium methoxide, it again attacks the carbonyl to give you this intermediate. जब ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आते हैं, then this carbon carbon bond it breaks. ठीक है, ये हमारा कार्बन कार्बन breaks and this bond comes here and the bromide leaves. तो इस प्रोसेस के अंदर आपका क्या हो रहा है, एक कार्बन हमारा कम हो. So what it does is basically reduction in the ring size. So what you end up getting is the formation of this olefin with one carbon less. So the correct option in this case was option number 4. Same concept. So here what we have again is a good example. So what they did is basically they have taken acidic deuterium. ठीक है, हमारे यहाँ पर जो एसिड भी है लिया है इन्होंने, आयन लिया है वो D+ लिया है. So they have asked what is the correct option. Let's again try and proceed logically. अगर हम इसका अगर एक तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करें, अगर ये डबल बॉन्ड हमारे यहाँ मूव हुए, सो वी कैन से दिस इज लुक्स लाइक मच मोर रीजनेबल बिकॉज यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है हमारा बेंजिलिक पोजीशन पे, और ये पॉजिटिव चार्ज कैन बी ईजिली स्टेबलाइज बाय द फिनाइल रिंग. ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे कि व्हाट आई हैव सेड दैट दे हैव यूजेस D3O+. सो व्हाट वी आर यूजिंग इज D2 एज द सॉल्वेंट और D+ एज द एसिड दैट दे हैव यूज्ड. ठीक है, मे बी शायद DCl यूज किया होगा, HCl की जगह DCl. So the negative charge attacks the deuterium. So what do you form is this particular intermediate. इसका हम resonance stabilize ये structure लिख सकते हैं. Now what happens with D2, the oxygen this proton. So this bond electrons they come here to give you the formation of this conjugated olefin with deuterium at this position. So the correct option in this case was option number 4. ठीक है, simple concept था.
For to understand this particular question, what you needed was to understand the Hammond postulate. And what does Hammond postulate say? It says that the transition energy of a reaction resembles either reactant or product to whichever it is closest. मतलब जिसके जितने ज़्यादा नज़दीक होगी हमारी, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, हमारा रिएक्शन, हमारी एनर्जी उसी से मतलब ये ना जब मोर रिलेटेबल होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है। इफ़ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हीट टू द रिएक्शन, इट मीन्स द ट्रांजिशन स्टेट इज गोइंग टू टेक मच लॉन्गर टाइम टू रीच, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। सो जैसे ही आपका ट्रांजिशन स्टेट इट रीचेस, इट क्विकली गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो इस फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस ट्रांजिशन स्टेट इज मच क्लोजर टू द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिस केस के अंदर एक्चुअली let us suppose if there is a neutral molecule that is getting out of the system, मतलब कि नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, उस केस के अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट इज रीच्ड प्रीटी ईजीली, ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा आसानी से हमारा एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड वट यू आर गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द ट्रांजिशन स्टेट इज मच क्लोजर टू द रिएक्टेंट। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा स्टेटमेंट मैच करता है। ओनली स्टेटमेंट नंबर 3, दैट इज मैचिंग, विच इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल्स द प्रोडक्ट। सो यहाँ से भी हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। हैमॉन्ड प्रिंसिपल इसके लिए जानना था हमें। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, दिस इज बेस्ड ऑन द पेप्टाइड केमिस्ट्री, एक तरह से हमारा उसके ऊपर है। सो व्हाट वी हैव इज बेसिकली दिस एसाइल सेलेनेट्स, ठीक है, एसाइल सेलेनेट्स है, एंड हियर व्हाट वी हैव इज एन अमीनो एसिड हैविंग दिस सेलेनाइड ग्रुप, ठीक है। ये है, हमको बोला गया pH 7 के ऊपर आप इनका रिएक्शन करा रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। सो व्हाट यू गेट इज बेसिकली एन इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट देन रीअरेंजेस टू गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट। सो दिस इज नॉट अ ज्विटराइन, यहाँ पर तो पहले मैंने ज्विटराइन जो लिखा है गलत है। तो बेसिकली हमारा क्या है कि दिस सेलेनाइड हाइड्राइड, दिस इज बेसिकली अ वेरी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, हमारे ये काफ़ी न्यूक्लियोफिलिक, तो दिस इज बेसिकली बिहेव्स मोर लाइक अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करता है, ये हमारा इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है, दिस कम्स बैक एंड दिस फिनाइलसिलेन इट लीव्स। सो व्हाट यू जनरेट इज बेसिकली दिस इंटरमीडिएट। हमारा जब ये इंटरमीडिएट जनरेट होता है हमारा दिस अगेन एक तरह का हमारा इसाइल सेलेनियम है, वो उस केस में क्या होता है कि आपका जो अमीन है इंट्रामोलिकुलरली व्हाट इट डज, इट अटैक्स and this particular is leaves. So what you end up getting is generation of this compound B. So इसका ऑप्शन था ऑप्शन डी, और ये कॉन्सेप्ट अगेन ये हमको एज आई सेड क्लियरली हमको पढ़ाया नहीं जाता, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर कईयों ने अटैम्प्ट नहीं किया हो, बट दिस इज हाउ यू वुड हैव प्रोसीडेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So basically this question was asked that the reaction that will show non-zero deuterium kinetic isotopic effect, मतलब ये है कि कौन से वाले रिएक्शन के अंदर अगर आप हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, देन यू आर गोइंग टू गेट सम वैल्यू, ठीक है. इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क दैट इफ लेट अस सपोज इफ वी वेदर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विद ड्यूटेरियम इज गोइंग टू इम्पैक्ट द रिएक्शन रेट. अब हम देख लेते हैं इसका क्या है. अगर हमको याद होगी इन द रिएक्शन मैकेनिज्म्स लाइक SN1 एलिमिनेशन, E1 CB एलिमिनेशन, सॉरी SN1 सब्स्टिट्यूशन, E1 एलिमिनेशन, E1 CB एलिमिनेशन, हमको पता है कि रिएक्शन की कंसंट्रेशन केवल डिपेंड करती है सबस्ट्रेट पे. तो उस केस के अंदर हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप ड्यूटेरियम को हाइड्रोजन से रिप्लेस करें. लेकिन इन रिएक्शंस लाइक SN2 सब्स्टिट्यूशन, E2 एलिमिनेशन, उस केसेस के अंदर द कॉन्सेंट्रेशन द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज द रिएजेंट दैट इज इन्वॉल्व. सो उस केस के अंदर इट का मतलब है कि वहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस करेंगे इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट. सो लेट अस लुक एट हाउ. जैसे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली क्या है, जब प्रोटोनेशन होता है दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सो इट डज नॉट मैटर अगर आप H2SO4 की जगह अगर आप D2SO4 यूज़ करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. लेकिन सेकंड स्टेप में आपका क्या हो रहा है कि आपका वाटर रिलीज हो रहा है एंड दिस इज द स्लोअर स्टेप, ठीक है. और इस केस के अंदर आपका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है किसी भी चीज़ का आपका, आप समझ रहे हैं, ठीक है. सो इसका मतलब दिस इज द स्लोअर स्टेप एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. और इस पूरे के पूरे ओवरऑल प्रोसेस के अंदर हमारा अगर हम इसका रिएक्शन रेट लिखेंगे इट इज़ गोइंग टू बी डिपेंडिंग ओनली अपॉन द सबस्ट्रेट. तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज इट इज़ ओनली गोइंग टू बी on this one. So it means it is going to have the zero deuterium kinetic isotopic effect, मतलब कोई भी इफेक्ट हमारा इस पर इम्पैक्ट नहीं होगा. लेकिन ऑप्शन नंबर अगर हम B के अंदर देखें KOH से अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि एलिमिनेशन होता है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ E2 एलिमिनेशन. हमको पता है अगर हम इसकी जगह KOH की जगह हम KOD यूज़ करें
तो हमारा क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो ये वाला हमारा जो रिएजेंट है दिस इज गोइंग टू रिएक्ट डिफरेंटली, क्योंकि रिएक्शन रेट क्या करता है, सबस्ट्रेट की और रिएजेंट दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा केस है तो इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू हैव नॉन जीरो काइनेटिक ड्यूटेरियम आइसोटोपिक इफेक्ट, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारा होगा। तीसरे केस में हमारा क्या है कि पहला स्टेप है हमारा डीप्रोटोनेशन तो गिव यू दिस कार्बेनियन। अब सेकंड स्टेप पे हमारा क्या, विच इज द रेट डिटरमाइंड स्टेप और स्लोएस्ट स्टेप है, हमारा कार्बेनियन वापस आता है एंड दिस ग्रुप लीव्स, सो दिस इज द स्लो स्टेप इस केस में। सो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, अगेन दिस इज गोइंग टू हैव द जीरो ड्यूटेरियम काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, सो द ओनली रिएक्शन विच इज गोइंग टू हैव नॉन जीरो इज द ऑप्शन बी। सो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसके अंदर इन्होंने पूछा है इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड दैट द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अमंग फॉलोइंग इज विच वन। मेरा इसमें एक्चुअली मैंने थोड़ा सा इसको आई थिंक ये क्वेश्चन सही ढंग से आई फेल्ट कुड हैव बीन आस्क्ड डिफरेंटली, सो इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ एरोमेटिसिटी हैव ट्राई टू अंडरस्टूड, ठीक है। सो हमको पता है कि देयर आर कंपाउंड्स लाइक दीज विच एग्जिस्ट, ठीक है। अगर हम इसको अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज हियर एंड पॉजिटिव हियर, सो what it does it basically in turns it is converting this into an aromatic species, ठीक है, इसको एक aromatic बना रहा है। लेकिन इस प्रोसेस को aromatic बनाने में what it is generating the carbocation that you are generating is a primary, so option 1 के अंदर। और option 2 के अंदर what is happening, if you write the same structure what you generate is a negative charge here, so this is becomes aromatic, so the positive charge here is what, इट इज़ नथिंग बट, सो सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने गलत लिखा है, दिस शुड नॉट बी सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी, ठीक है, ये हमारा टर्शरी है। सो टर्शरी इज द वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन, सो इसका मतलब इसका एरोमेटिक करेक्टर, सो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन नंबर 2। 3 के अंदर करके अगर हम दोबारा से हम लिखेंगे, सो व्हाट वी आर जनरेटिंग इज अ प्राइमरी एंड दिस इज ऑल्सो दी एरोमेटिक। और 4 के अंदर तो हमारा क्या है कि दिस इज कंप्लीटली नॉन एरोमेटिक। अगर आप यहाँ पर अगर इस दूसरी एक हम माइंड से सोचें भी कि क्या हम इसको डीप्रोटोन, दिस प्रोटोन इज एसिडिक, इसका डीप्रोटोनेशन होगा, कार्बोनियन जनरेट होगा, अगर हम ये सारे के सारे ऑप्शन भी अगर हम लिख दें, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बिकम दी एरोमेटिक। अगर हम यहाँ इसको भी देख लें, इसको ऐसे हम मूव करें, नेगेटिव यहाँ जनरेट करें, सो व्हाट यू विल जनरेट इज बेसिकली डायनाइनिक काइंड ऑफ अ स्पीशीज विच इज हाईली डिस्टेबलाइज। सो ऑप्शन 4 को तो हम कंसिडर करते ही नहीं है। So considering all these factors, I feel option number 2 should be the correct answer. But मुझे लगता है कि they could have asked this question a little differently. So option 2 was the correct answer. यहाँ पर बात करते हैं, उन्होंने पूछा कि से दे हैव गिवन अस 2 एरोमेटिक कंपाउंड्स विद एल्किल चेन एंड दे हैव आस्क्ड अस कि बेस पीक ऑफ दीज आइसोमर्स की क्या होनी चाहिए, कौन सी वाली बेस पीक है। हमको पता है कि बेस पीक डजंट हैव टू बी द मॉलिक्यूलर आयन पीक। बेस पीक होती है कि द मोस्ट स्टेबल पीक, मतलब जिसकी नॉट मोस्ट स्टेबल पीक, बेस पीक इज द पीक जिसकी हमारी क्या होती है, मैक्सिमम मैक्सिमम आयनाइजेशन होता है, जिसकी हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बेस पीक। सो द बेस पीक कैन बी द मॉलिक्यूलर आयन पीक, इट कैन नॉट बी द मॉलिक्यूलर आयन पीक, ठीक है। हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वाला है। सो इसके ऑप्शन नंबर 1 के अंदर अगर आप यहाँ से इसको डिफ्रेगमेंटेशन करेंगे, सो व्हाट यू विल जनरेट इज अ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है, और उसको अगर हम लिखने की कोशिश करें, सो व्हाट यू विल जनरेट इज दिस वन। सो जो हमारी इस केस में बेस पीक होगी वो ये होगी। सिमिलरली इस दिस केस के अंदर भी अगर हम यहाँ से डीफ्रेगमेंटेशन करेंगे, व्हाट यू विल जनरेट इज अ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, उसकी भी बेस पीक ये होगी। सो इन दोनों केसेस के अंदर बिकॉज हमको पता है ट्रोपाइलियम आयन आर सो स्टेबल, ट्रोपाइलियम आयन आर एरोमेटिक इन नेचर एंड दे आर स्टेबल, सो इट इज द ड्राइव टू अचीव extra stability is what makes these कार्बोकेटायन फॉर्म, ठीक है। सो इस ऑप्शन के अंदर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। सो हमसे यहाँ पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट। जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 से, तो जब हम रिएक्ट करते हैं ग्लूकोज को डाइल्यूट HNO3 से, व्हाट डू वी जनरेट इज बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एल्डिहाइड और हमारा एल्कोहल हम उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना रहे हैं। सो व्हाट वी आर फॉर्मिंग इज द ग्लूकेरिक एसिड, दैट इज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। सो प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, नहीं जी, ऑप्टिकली एक्टिव होता है बिकॉज व्हाट यू हैव इज दीज हाइड्रोक्सीज, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। सो सेकंड चेन, द ओपन चेन ऑफ दिस शोज IR एट 70-40। हम इस ओपन चेन की बात कर रहे हैं, एसिड है क्या 740 हो सकता है, लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो ग्लूकेरिक एसिड होता है दिस कार्बोनिल डज नॉट कम एट 740। इसका एक्चुअली स्ट्रेंजली इसका कार्बोनिल डज नॉट शो अप इन IR।
तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर आप ये वाला ऑप्शन करेक्ट करके आए हो। नंबर 3 में NMR में इट गोज शोज अ सिग्नल 12 to 13। यस, एसिड का हमारा हमेशा सिग्नल समवेयर अराउंड 12 ही आता है, सो दिस कैन बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 के बारे में पूछा गया, इट गिव्स अ ब्रिक रेड PPD अपॉन ट्रीटमेंट फेलिंग सॉल्यूशन। तो वो तुम्हारा तब आता है अगर हमारा एल्डिहाइड प्रेजेंट हो, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है एसिड में, और हमारा कॉपर ऑक्सीडाइज, कॉपर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, कॉपर +2 ऑक्सीडाइज होता है कॉपर ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, उसका हमको रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। So based on what we have is option number 3 seems to be the correct option and it is the correct option. और हमारा So the next question that was asked was basically on the Birch reduction. I have already made a lot of videos on the Birch reduction. So the substrate that we are dealing with here was phenanthrene. और हमको पता है कि जब भी हम Birch reduction phenanthrene का करते हैं वो हमेशा it happens at the position number 9 and 10, ठीक है, exclusively. Straight forward question था, ठीक है. Next question was the compound that is used as an anti-HIV drug was one which out of the following. So this is basically a medicinal chemistry का question है, लेकिन इसमें भी हम concept लगा सकते थे. Taxol is basically is nothing but an anti-cancer agent, जैसे आपको पता होगा, हमने सुना भी है. और amlodipine, एक्चुअली इसका नाम ही इन्होंने यहाँ गलत दिया है. दिस ड्रग इज कॉल्ड दी amlodipine. तो ये रिट्रैक्ट करना चाहिए क्वेश्चन में लॉजिकली. इंस्टेड ऑफ आई दिस शुड बी एल, एंड दिस इज अ ड्रग दैट इज यूज फॉर द हार्ट डिजीज, सो इट्स कॉल्ड amlodipine. और ये एडिफोवीर है, ठीक है. मोस्टली जितने भी एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं उनके एंड में हमेशा वीर आता है, ठीक है. तो आपका बेस्ट बैट होता बिटवीन ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 1, बट एडिफोवीर हमारा यूज होता है एज एन हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन दैट वाज, इट वाज इज ज़िडोवुडीन. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी AZT, ठीक है, फेमसली नोन एज दी एजिडोथायमिडीन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग that is used as an anti-HIV drug. So the option correct option हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर 1. So the next question that was asked on was basically here what we have is an chloride present at the allylic position to olefin and acetate present at the allylic position. Now हमको यहाँ पर बुटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर साइनाइड विच इज़ ओनली कैटालिटिक अमाउंट. अगर हम इस प्रोटोकॉल की बात करें, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, व्हाट वी आर जनरेटिंग इज अ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनोक्यूपरेट स्पीशीज, ठीक है, ऑर्गेनोक्यूपरेट. और हमारा क्या है कि हमें पता है क्लोरो इज अ गुड लिविंग ग्रुप. So what happens is basically, so it becomes, हमको पता है कि जैसे ही हमारा ऑर्गेनोक्यूपरेट बनता है तो rather than the direct addition it prefers the conjugate addition. तो यहाँ पे हमारा बुटाइल क्या करता है, attacks, ठीक है, this double bond shifts and the chloride leaves, and this attack is basically taking place from the top place. और उसका simple reason हमारा क्या होता है, क्योंकि हमारा acetate है which is behind the plane, और दूसरा क्या है कि हमारा क्योंकि क्लोरो इज हमारा बिहाइंड द प्लेन है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये ऊपर से अटैक कर रहा है, डबल बॉन्ड मूव हो रहा है, ये नीचे से लीव कर रहा है, ठीक है. ऑर्गेनोक्यूपरेट कॉन्जुगेट एडिशन, सो द डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट यू गेट इज ऑप्शन नंबर दिस वन. सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है. So the next question that was asked to us, it was basically कि the number of signal observed in the proton decoupled 13C NMR spectrum of the following. मतलब ये the structure that is given to us is nothing but admantane. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर if we look at, we have been asked how many 13C NMR में हमें कितने सिग्नल मिलेंगे. तो इस एडमेंटेन के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो केवल हमें 2 सिग्नल मिलेंगे. एक हमारा ये एक CH है, एक CH2 है, और पूरे मॉलिक्यूल में कोई भी ऐसा डिफरेंट हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिफरेंट हो रहा हो, ठीक है, सारे के सारे सेम है, ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज ओनली 2 कार्बन सिग्नल, one for CH and other for CH2. So the option was the option number 2. Now in the next reaction what we are asked the rate of reactions of the following halides with sodium iodide. एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि इस ब्रोमो को रिप्लेस कर रहे हैं आयोडीन से, ठीक है. तो क्या रेट होगा, किसमें सबसे फास्टेस्ट होगा, दिस हैज बीन आस्क्ड. नाउ अगर हमको देखें तो सोडियम आयोडाइड में आयोडाइड इज अ प्रीटी बल्की ग्रुप, काफ़ी बड़ा साइज होता है. सो इसका मतलब क्या है कि ये उन ब्रोमो को इतने अच्छे से रिप्लेस कर पाएगा जिनके अराउंड बल्क कम होगा. तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑप्शन नंबर 1 पे वुड बी द फास्टेस्ट, फॉलोड बाय ऑप्शन नंबर 3 एंड देन ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारा टर्शरी बुटाइल ग्रुप है, दिस हैज़ द हाईएस्ट बल्क. सो ये हमारा ऑर्डर होगा. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. सो द ऑप्शन था 1 देन 3 एंड देन ऑप्शन नंबर 2. So the next question that was asked to us was basically बोला गया कि when you subject this particular compound and what you get is whatever product that you get, it's a chiral product.
दैट्स व्हाट दे से, इट्स एन ऑप्टिकली एक्टिव। तो उसके अंदर आपका क्या हो रहा है, मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कायरल एक्सिस प्रेजेंट है, कायरल प्लेन है, या हेलिकल कायरलिटी है, आउट ऑफ दिस क्या है। और ये यूज़ कर रहे हैं रिडक्शन के लिए NADPH एंजाइम। तो हम क्या कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो व्हाट दे आर डूइंग इज बेसिकली दे आर सेइंग दैट इट इज़ कीटो रिडक्टेस। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट दे एंजाइम इज डूइंग बेसिकली इज स्पेसिफिकली रिड्यूसिंग दिस कीटोन in an enantiomer selective manner. So what you are forming is either alcohol in which OH is coming out of the plane or OH is going behind the plane. So this is what this enzyme is doing. और इसके अंदर हमारा what is the which is the which is a factor that is making this particular behaving like a chiral molecule, because it has a chiral axis. So the correct option था क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर आपने आयन एक्सचेंज रेजन्स के बारे में या फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा हो तो आप ये आंसर कर पाते, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा क्या है कि जब आप एल्यूट करें, लेट अस सपोज अगर आप ये चारों के चारों एमिनो एसिड का अगर आप मिक्सचर ले लें, ठीक है, या अगर मिक्सचर नहीं भी लें तो आप अगर मान लीजिए इसको एनायन रेजन कॉलम से अगर पास करेंगे, ठीक है, बफर उन्होंने बोला हुआ है 4 बफर का मतलब है द कंडीशन इज एसिडिक, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा नीचे आ जाएगा और सबसे बाद में कौन सा आएगा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर आस्किंग। तो सबसे पहले हम एनायन एक्सचेंज रेजन्स और उसके बाद में एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में देख लेते हैं है क्या। बेसिकली दिस इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस जिसके अंदर हम स्पीशीज को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर चार्जेस, ठीक है। मतलब हमारे एनायन मतलब हमारे जो रेजिन होता है उसके अंदर व्हाट वी हैव इज अ पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप। रेजिन के अंदर पॉजिटिव चार्ज ग्रुप्स होते हैं प्रेजेंट, और वो अगर पॉजिटिव चार्ज ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, हमारा नेगेटिव के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे। तो जो भी हमारा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होंगे उनको वो होल्ड कर लेंगे, उनको बाइंड कर लेंगे, और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ को आसानी से वो पास होने देंगे। इसको हम एक डायग्राम की मदद से आसानी से समझ सकते हैं कि लेट अस सपोज व्हाट वी हैव इज दिस इज द रेजिन, ठीक है, विच हैज़ लाइक अ पॉजिटिव आयन ऑन ऑल ऑफ देम। लेट अस सपोज हमने एक अमीनो एसिड का एक मिक्सचर डाला जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड भी है, नेगेटिव भी है। तो उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो नेगेटिव है वो तो हमारे रेजिन के साथ अटैच हो गए, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे और इजीली सेपरेट कर लिए जाएंगे। सो दिस इज़ अ बेसिक फंडा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने pH 4 बता दिया और एसिडिक भी बता दिया। तो इसका मतलब अगर हम क्लियरली इन सबको देखें तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा क्या है कि दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ एन इमिडाजोल रिंग एंड दिस इज़ बेसिक इन नेचर। मतलब pH 4 के आसपास दिस इज़ गोइंग टू बिकम एसिडिक, और बाकी सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर देखें दिस इज़ एन एसिडिक ग्रुप, दिस इज़ SH एंड दिस इज सिंपल एंड हाइड्रोकार्बन चेन। तो दिस इज गोइंग टू बी इल्यूडिंग फर्स्ट क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आयन एक्सचेंज के अंदर सबसे पहले हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा कंपाउंड नंबर 1। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 की बारी। 1 तो हो गया, 1 के अंदर हमारा क्या कि हाइड्रोकार्बन चेन है, SH है और COH है। हमको पता है कि SH हमारा बिहेव्स मोर लाइक अ बेस। सिमिलरली हमारा COH ऑल्दो हमारा क्या है कि एसिडिक है, ठीक है, हमारा ऑल्दो ये एसिडिक है, लेकिन हमारा क्या होगा कि इसका अंडर एसिडिक कंडीशन दिस इज गोइंग टू बी कमिंग सबसे हमारा लास्ट के अंदर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एग्जिस्ट मोर लाइक CO माइनस कार्बोक्सिलेट की तरह करेगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बाइंड विद द पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा जो 4 है दिस इज गोइंग टू इल्यूड लास्ट। तो जिन भी ऑप्शन के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर 4 लास्ट है, वो है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 और 4 हमारा दिखा रहा है। सो नाउ वी हैव टू चूज फ्रॉम ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। हमको पता है कि दिस SH ग्रुप दिस इज अ थायोल ग्रुप, दिस बिहेव्स मोर लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, मोर लाइक इट हैज एन इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ अट्रैक्ट होंगे, दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड cation which are on the surface of the resin. So इसका मतलब out of this 1 or 2, second third is going to be coming later, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बाद में आएगा। तो करेक्ट ऑर्डर हमारा क्या है कि सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। सिंपल फंडा लगाना है हमें।
So this particular question, this was basically based on a name reaction, which was just called the Friedlander synthesis of quinolines. और the reason why I've shared this particular reference with you, so ये वाला जो exact question है, this has been taken from reference called organic synthesis, organic reactions. अगर आप ये वाले, it has been published in Ville, and this is what they say about this reaction. Now अंडर एसिडिक कंडीशन तो हमको पता है कि मैकेनिज्म इसका क्या है. सो व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग इज दिस इज द सब्स्टिट्यूशन. सो व्हाट डू गेट इज फिनाइल मिथाइल मिथाइल. सो एंड एसिडिक कंडीशन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म है. पहला स्टेप आपका क्या है कि अंडर एसिडिक कंडीशन व्हाट हैपन्स, इसके ऊपर अटैक करता है थ्रू द इनोलेट फॉर्म, इनोल फॉर्मेशन, प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन केमिस्ट्री टू गिव यू द किनोलिन. अंडर बेसिक कंडीशन आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अंडर बेसिक कंडीशन यू वुड एक्सपेक्ट कि हमारा ये वाला जो कीटोन है इसके अंदर इथाइल ग्रुप में यहाँ क्या क्या CH2 है. सो द कार्बेनियन शुड बी एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड, क्योंकि दिस इज द कंडीशन विच इज़ द थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशन. और अगर हमारा कार्बेनियन हमारा यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कीटोन के ऊपर अटैक करेगा. So the functionality that we are going to get is more or less is going to be like this one, जहाँ पे हमारे क्या होंगे, दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप होंगे. लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है. ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि दिस इज़ काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन एग्जाम्पल, मतलब जो एक्सेप्शंस के अंडर आता है. यहाँ पे उन्होंने एक्जैक्टली सेम एग्जाम्पल लिया हुआ है और बताया हुआ है कि जब आप एसिडिक कंडीशन में ट्रीट करते हैं, दिस इज़ अ मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज़ फॉर्म्ड इन ट्रेसेस, ठीक है. और अगर आप बेसिक कंडीशन में ट्रीट करते हैं तो दिस इज ओनली 11%, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. सो दैट इज द रीजन वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. बट ऑनेस्टली आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर इसकी जगह, ठीक है, मैं ऑप्शन नंबर 1 को ही करेक्ट करके आता. एंड मैनी स्टूडेंट मस्ट हैव डन इट एंड आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज मुझे लगता है कि दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एन रिपोर्टेड पेपर और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है. बट अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट लगाते तो यू वुड से दैट अंडर दिस एक्वस QH इन इथेनॉल देयर विल बी एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम दिस साइड रादर देन इस वाले, क्योंकि यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद, ठीक है, व्हाट यू गेट इज अ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इनोलेट, और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस हैं. तो I have no idea why under basic condition you guess the reverse products. Okay, so but I gave you the reference from where this question was taken. So the next question again, it was from I wouldn't be surprised अगर आपने गलत किया हो, because it is exactly taken from this paper. आपका photosensitized isomerization of octalines, exactly यही example डिस्कस किया गया इस पेपर के अंदर, and it was reported in 1969. So what do you do whenever you expose these octalines to under photochemical condition using xylene and tertiary-butanol? What do you generate is basically this carbocation. अब इस carbocation को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. So what they report is basically 1,2 methyl shift to form this one, and there's a deprotonation to give you this exocyclic double bond. What they say is basically if whenever you are using tertiary-butanol and you are using irradiation, ठीक है, यहाँ पर होने के बाद हमारा क्या हो सकता था, यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी हो सकता था और हमारा एंडोसाइक्लिक भी हो सकता था. अगर बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हम यूज़ करें, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन दिस वन. लेकिन as reported by the paper, it is the exocyclic which is favored under this condition. Again, these are purely experimental observation and I wouldn't be surprised कि अगर आप में से कईयों ने गलत करा हो. अगर मैं होता आपकी जगह, I would have also selected option number 2. But the reason why I'm giving you this reference is to give you the most authentic information. ठीक है? So this is the experimental observations. सो उसके बाद हमारा क्या है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल शिफ्ट पूछा गया मिथाइल ग्रुप की. अगर हम इससे क्लियरली अगर एक चीज़ देखें, ठीक है, दिस नाइट्रोमीथेन में बट वी हैव इज अ नाइट्रोजन अटैच विद बोथ द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बीइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, ऑक्सीजन इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रोटोनेटेड है विच इज मेकिंग दिस मिथाइल ग्रुप वेरी वेरी एसिडिक. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट विल बी मोस्ट डीशील्डेड. मतलब हमारा जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप सबसे पहले है, ठीक है, वो करेक्ट ऑप्शन होगा. मतलब ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 के अंदर से एक करेक्ट है. अब बाकी दूसरे पे आ जाते हैं. हमारा यहाँ क्या है कि एसिटोनाइट्राइल है, हमारा मिथाइल क्लोराइड है और हमारा एसिटोफिनोन है. अब इसके अंदर हम देख लेते हैं हमारा जो क्लोरीन है, दिस इज इट हैज़ अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. काफ़ी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इसकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा मिथाइल क्लोराइड का. ठीक है, तो एक तरह से हमारा ये क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर 1 और 3 और बाकी किसी में और है ही नहीं. तो करेक्ट ऑर्डर हमारा क्या है कि ऑप्शन नंबर 2. बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना था. सो द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द हैमट इक्वेशन. तो
इसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, बट जस्ट क्विकली गो ओवर दिस. व्हाट इज बेसिकली हैव दे सेड दिस फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन व्हिच इज द स्टेटमेंट दैट वाज ट्रू. अगर हम रिएक्शन कंडीशन को देख लें तो ये तो एटलीस्ट पता लगा सकते हैं दिस इज SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि व्हाट वी आर यूजिंग इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अंडर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट द SN1 इज प्रेफर्ड. ठीक है, तो ऑप्शन हम 1 और 3 को तो हम नेगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बोला है कि हमारी ये रो वैल्यू होगी, हमारी क्या होगी. तो जब भी हमारी रो वैल्यू होती है लार्ज नेगेटिव होती है अगर हमारा डीलोकलाइजेशन हो रहा हो और पॉजिटिव चार्ज ऑन दी बेंजीन रिंग. तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज हमारा जनरेट होगा दिस विल बी डीलोकलाइज ऑन दी बेंजीन रिंग एज वेल एज ऑन दिस फिनाइल रिंग. सो दैट इज द रीजन ऑप्शन 4 वाज दी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो ये था नेट के क्वेश्चंस का जो असम और मेघालय रीजन का था. अगर आपको मेरा काम पसंद है, वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे. टेक केयर. बाय.